لیکن افسوس ہم دنیا داری میں اتنے مشغول ہو گئے کہ پوری زندگی ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آیا. کس دوست نے واٹس ایپ میں کیا بھیجا روزانہ کھول کر ڈیٹا آن کر کے دیکھتے ہیں. کہیں والد محترم نے تو کوئی میسج نہیں کیا, کہیں ہمارے بھائی نے بمبئی سے تو نہیں کیا, ہمارے فلاں بھائی نے پونے سے تو کوئی پیغام نہیں بھیجا. ای میل بھی چیک کرتے, فیس بک بھی چیک کرتے, اس کا ان باکس جا جا کر کے بار بار دیکھتے, واٹس ایپ بھی کھولتے. اور آج کل طرح طرح کے واٹس ایپ, ایک بندے کو میں نے دیکھا اپنے ایک موبائل پر تین واٹس ایپ چلا رہا ہے اور تینوں کو بار بار کھول کر کے وہ دیکھ رہا ہے. ہم سارے پیغامات کو پڑھتے ہیں, سارے میسیجز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا پیغام دیا. آئے افسوس جس رب نے تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے. ابھی آپ نے احسانات کی آیتیں سنی, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے, اس رب کے پیغام کے تئیں دل میں اتنی سوچ بھی نہیں آئی کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. کم سے کم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی صحیح کم سے کم ٹائم نکال کر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوگا, جن کو اللہ کا پیغام معلوم ہوگا, انبیاء کے بھیجنے کا مقصد معلوم ہوگا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. اکثر امت مسلمہ کے لوگ آج دنیا داری میں بزی ہیں, دنیا داری میں مست ہیں. اللہ کہتا ہے ارے قرآن پڑھو. جس دنیا داری کے چکر میں ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اللہ اس زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, یہ بھی قرآن ہی کیا ہے. ارے اس دن تو کامیاب وہ شخص ہوگا, اس کو کامیابی ملے گی جو جہنم سے بچا لیا جائے گا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا, فَقَدْ فَازَ, پھر وہ کامیاب ہوگا. آج ہم کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, آج ہم نے عالیشان بلڈنگ کیا بنا لی, ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنی عمر دیکھتے ہیں کہ ہم 40 سال کے ہو چکے اور زیادہ سے زیادہ ہم 10-20 سال تک آگے جائیں گے, اس کے بعد اسی بلڈنگ پر کون راج کرے گا ہمیں بھی پتا نہیں. جس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی, اللہ کی قسم وہ ہمارے انتقال کے بعد ہمیں پتا نہیں کہ اس بلڈنگ میں کون لوگ رہنے والے. جن گاڑیوں کو خریدنے کے لیے آج ہم بے غریب روپے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ دنیا فانی ہے, اور حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور جن اولاد کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی قسم یہی اولادیں منومن مٹی کے بعد, تمہارے مرنے کے بعد منومن مٹی کے اندر دبانے کے بعد چند دن تک تمہارا ذکر کریں گے, لیکن چند دن ذکر کرنے کے بعد یہ اولادیں بھی تمہیں فراموش کر دے گی, یہ اولادیں بھی تمہیں بھول جائے گی. ابھی مغرب بعد پروگرام ہے, اس میں یہ ٹاپک ہے, انشاءاللہ وہ ساری باتیں آئے گی. جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے, اس لیے ادھر میں نہیں لے کر کے جاؤں گا. ہماری اولادیں اتنی فرما بردار نہیں کہ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں, پھر ہم دنیا میں کس لیے اتنے مست ہو جا رہے ہیں. دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر رہ کر اگر دنیا کے حصول میں آخرت میں آدمی گھاٹا کھا جائے تو اللہ کی قسم اس کا کمانا بھی حرام ہوگا. اس کی نماز سے جو کمائی چھڑوا دے وہ کمائی بھی کوئی کمائی ہے, وہ کام بھی کوئی کام ہے. تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ سارے پیغامات کھلتے ہیں, لیکن کبھی رب کا پیغام ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. لیکن قیامت کے دن جب جہنم میں بندہ جائے گا, وہ بندہ اللہ کے سامنے کہے گا, اے اللہ پھر سے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے, نعمل صالحہ, تاکہ ہم اچھے عمل کریں گے. وہ برائیوں کا نام لے لے کر کہیں گے, اے اللہ فلاں فلاں کام ہم نہیں کریں گے, اے اللہ تیری عبادتوں میں مصروف ہوں گے, تیری فرما برداری کرتے رہیں گے, تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہے بندے تو کیا بات کرتا ہے, ہم نے تو تمہیں مہلت بھی دی, ہم نے تمہیں 60 سال کی 80 سال کی عمر دی,
हमने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा, अपनी दौलतों से माला माल किया, हमने तुम्हें रुपए पैसे धन दौलत का भी मालिक बनाया, हमने तुम्हें औलाद की भी नेमत दी, हमने सारी फरावानी तुम्हारे अंदर दे रखी, इसके बाद भी तुम मेरी नाफरमानी करते रहे। जब मौत का वक्त आया उसके चपेटे में जब तुम आ गए, अब तुम कहते हो कि हमें मोहलत चाहिए, हमें टाइम चाहिए। तुम्हारे पास तो जहन्नम के बारे में बताने वाले लोग भी आए, वजाअकुमुन नज़ीर, जहन्नम से डराने वाले लोग भी आए, अंबिया भी भेजे गए। उसके बाद अंबिया के वारिसीन आए जो कुरान को पढ़ करके सुनाते थे। तुम्हें भला क्यों कर मौका दिया जाएगा? और यहाँ तो जहन्नम की बात है, यहाँ मौत ही के वक्त अगर हमारे अच्छे अमाल नहीं रहे तो हम अल्लाह से कहेंगे, कुरान क्या एक मुलाहिजा करें, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी का मौत का वक्त आ जाता है, काल वो कहता है रब्बिरजिऊन, आए मेरे परवरदिगार फिर से हमें लौटा दे, फिर से हमें दुनिया के अंदर भेज दे। क्या करोगे दुनिया के अंदर? 60 साल की जो उम्र थी, 70, 80, 100 साल, 110, 20 साल की, वो तो तुम गुजार चुका, अब क्या करोगे? लअल्ली आमलु सालिहा, ताकि यहाँ भी वही बात कही जा रही है, अच्छे अमाल करूं, फीमा तरक, जो मैं पिछली जिंदगी नहीं कर पाया। अल्लाह कहेगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन वहुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। ऐ मेरे बंदे, तू टाइम मांगता है, तू मोहलत मांगता है, लेकिन याद रखो इन्नहा कलिमतुन, ये एक ज़बान से बोला हुआ कलिमा है, जुमला कह लें आप। और आपको तो अच्छी तरह समझ है कि जुमले कभी पूरे नहीं, एक जुमला है, इन्नहा कलिमतुन वहुवा काइलुहा, जो उसके कहने ही वाले की तरफ पलटता है। लेकिन तुम्हें यहां पर बरज़ख की जिंदगी में इला यौमि युबासून, उठाए जाने तक यानी क़यामत तक तुम्हें बरज़ख ही की जिंदगी में अब रहना है। अब तुम्हें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, अब तुम दोबारा दुनिया के अंदर नहीं जा सकते। तमन्ना करेंगे, काफी अफसोस मलेंगे, हाय मेरी बर्बादी, अल्लाह मैंने अपनी उम्र की अल्लाह कदर न की, मैंने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की कदर न की, अल्लाह जो फुर्सत वाले औकात थे उसकी हमने कदर नहीं की। जहन्नम इतनी बुरी जगह है, इतनी खतरनाक जगह है, जिसे अल्लाह ने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी। जहन्नम को अल्लाह ने कई नामों से जिक्र किया, कहीं पर बिसल मसीर का, कहीं पर कुछ का, कहीं पर कुछ का। जहन्नम की अलग अलग वादियां हैं, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक के बारे में कहा गया सबसे निचले तबके में। इसी तरह बेनमाजियों के बारे में कहा गया कि गई नामी जहन्नम की वादी में इनका ठिकाना होगा। तो पता चला जहन्नम की अलग अलग वादियां भी हैं, इसके अलग अलग अस्मा हैं, इसके अलग अलग नाम हैं, वहीं पर अलग अलग वादियां हैं। उस जहन्नम का जिक्र जब मेरे नबी के सामने होता है, सही बुखारी की रिवायत उठाइए, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जिक्र हुआ। सुम्मा ज़करन नारा फ़अशाहा बिवजहिही, आपके सामने अदी बिन हातिम इस रिवायत को नकल करते हैं, रिवायत करते हैं, सही बुखारी में इमाम बुखारी इस रिवायत को नकल करते हैं। अदी बिन हातिम कहते हैं ज़करन नार, आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है, फ़अशाहा बिवजहिही, जहन्नम का नाम सुनने के बाद आप अपना रुख फेर ले रहे हैं। हमारे सामने कितनी बार जहन्नम का नाम आया, हमने कलाम पाक में कितनी बार जहन्नम का जिक्र पढ़ा, मगर कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर जहन्नम के बारे में क्या बयान है। तर्जमे के साथ देखें तो सही, नबी के सामने जहन्नम का जिक्र होता है। अदी इब्न हातिम कहते हैं जहन्नम का जिक्र सुनते ही नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रुख फेर लिया आपने। सुम्मा ज़करन नार, कहते हैं कि फिर दोबारा आपके सामने जहन्नम का जिक्र हुआ। फ़अशाहा बिवजहिही, फिर आपने दोबारा भी आपने अपना चेहरा, अपना रुख फेर लिया। फ़क़ाल, फिर आपने अपने सहाबा से खिताब किया, इत्तक़ुन नार,
आए मेरे साथियों, इस जहन्नम से बचो, वलौ बिशिक्क तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। जहन्नम से बचने के लिए अगर खजूर का एक टुकड़ा ही मैसर क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह की राह में सदका करो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। पता ही चला सदका जहन्नम से बचाव का एक जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है, आप अपने अमल से साबित कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र सुनकर अपना रुख फेर ले रहे हैं और कह रहे हैं जब दोबारा जिक्र होता है आप कहते हैं उस जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदमी होगा, आदमी के आगे उसके अमाल नजर आएंगे जो दुनिया में उन्होंने किए, दाएं बाएं अमाल होंगे, हर तरफ अमाल होंगे और आगे जहन्नम की आग भड़क रही होगी। कैसे उस आग से बचेगा? इस तरह जिक्र होता है। फिर आप फरमाते खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते में सदका देकर उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र करो। आप जहां अलग अलग दुआएं करते हैं, फर्ज नमाज के बाद जहां कब्र के अजाब से पनाह मांगने की दुआ सिखलाई और बराबर आप दुआ मांगते रहे, वहीं पर आपने अपनी उम्मत को अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, जहन्नम की आग से भी पनाह मांगने की दुआ सिखलाई। आज अलग माहौल, आदमी नमाज पढ़ता फर्क ऐसे करने लगता है। नबी की जो दुआ थी, जो आपका मामूल था, जो हर फर्ज नमाज के बाद जिन दुआओं का एहतमाम करते थे, उन दुआओं को हमने छोड़ा तो एक नई दुआ का हमने ईजाद कर लिया। इसीलिए जो लोग सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, वो अपनी मस्जिदों पर ऐसी दुआओं की लिस्ट तक लगाते हैं ताकि लोग इन दुआओं का एहतमाम करें। बाहरी सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से बचने की दुआ अपनी उम्मत को सिखलाई। इससे आप जहन्नम का अंदाजा लगा और गहराई। हजरत अबू हुरैरा हैं, कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठे हुए हैं, इज़ समिअ वजबतन, हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अतदरून मा हादा, आए मेरे साथियों क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है? अल्लाह व रसूल आलम। हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस चीज के गिरने की आवाज। अल्लाह के रसूल ने कहा हादा हजरु रुमिया बिही फिन्नार, ये वो पत्थर है जिसे अल्लाह ने जहन्नम में छोड़ने के लिए फेंका था। मुन्ज़ु सबईना खरीफन, ये 70 साल के बाद ये जहन्नम में ये पत्थर जाकर के पहुंचा है। रुमिया बिही फिन्नार मुन्ज़ु सबईना खरीफन, 70 साल पहले छोड़ा था, आज जहन्नम की तह में ये पत्थर पहुंचा। गहराई इतनी है कि कोई चीज फेंकी जाए तो 70 साल तक वो चीज सफर करती रहे, 70 साल के बाद जहन्नम की तह को टच कर पाए। इससे जहन्नम की गहराई का अंदाजा लगाएं। तो इतनी गहराई होगी तो जानते अज़ाब किस किस्म के होंगे। जहन्नमियों की ज़खामत बड़ी कर दी जाएगी ताकि उनको मुकम्मल और ज्यादा से ज्यादा अज़ाब चखने को मिले। हजरत मुजाहिद कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि जहन्नम की गहराई का जिक्र करते हुए कि जहन्नमियों की जो ज़खामत होगी, यानी उसके जिस्म का जो फैलाव होगा, वो कानों की लौ से उसके कंधे तक आने के लिए किसी घुड़सवार को घोड़े पे सवार कर दिया जाए और यहाँ से वो सफर शुरू करे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 70 साल लगेगा। 70 साल में यहाँ कान की लौ से सफर शुरू करेगा, कंधे तक पहुंचेगा। हाँ, इतनी बड़ी जहन्नमियों की ज़खामत कर दी जाएगी, जिस्म का दिल डोर बड़ा कर दिया जाएगा ताकि अजाब ज्यादा चखने को मिले। ये खूबसूरत चेहरे आए मेरे साथियों, अगर अल्लाह की इताअत में ना गुजरे तो अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन झुलसा दिए जाएंगे। इतनी बड़ी ज़खामत हो रही है, रो रो कर जहन्नमी
इतने बेहाल हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून जारी होंगे और इतने गड्ढे पड़ जाएंगे, अगर कोई आदमी उसमें कश्ती चलाना चाहे तो कश्ती भी आराम से चला सकता है। जहन्नमी बसूरत बने हुए होंगे। आदमी दुनिया में नित नए कपड़े इस्तेमाल करता है, हस्बे मामूल, हस्बे इस्तिताअत, जिस तरह अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी, अपने इस्तिताअत के मुताबिक कपड़े इस्तेमाल करता है। अल्लाह कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला जहन्नमियों के कपड़ों का जिक्र करते हुए एक जगह फरमाया, फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए जहन्नम में आग के कपड़े उनके नाप के हिसाब से काटे जाएंगे। आदमी अपने हिसाब से पहनता है, ऐसा नहीं कि वालिद मोहतरम का कुर्ता पहन करके आ जाए, अपने नाप का पहनता है। जहन्नम में भी उसी नाप का, इसीलिए कहा गया कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नम में जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। युसफ़्फ़ु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम, और जहन्नमियों के ऊपर उस दिन गरम खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। अभी आपने दिसंबर का महीना झेला, उसकी सर्दी झेली, जनवरी भी आपने गुजारी, कितनी सख्त सर्दी होती है। और आप मगरिब में जाएं, यूपी दिल्ली और इसी तरह राजस्थान चले जाएं, जिस तरह आप इधर जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। और बात जगह ऐसी है जहां -डिग्री में सर्दी पड़ती है, लेकिन अल्लाह की कसम वहां पर भी आप बहुत ज्यादा हीटर तेज करके आप हीटर के सामने अपना फेस करके खड़ा नहीं हो सकते। या -डिग्री में सर्दी पड़ने वाली जगहों में भी बहुत ज्यादा गर्म करके पानी भी आप नहीं रह सकते। अल्लाह फरमाता है जहन्नमियों के सरों पर उस दिन जहन्नम का खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसफ़्फ़ु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम, जहन्नम के ऊपर जहन्नमियों के सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। कितना पावरफुल होगा। युसहरु मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद, जो पेट के अंदर आते हैं उस पानी के पावर से, पानी की वजह से वो आंतें गल जाएंगी, आंतें सड़ जाएंगी। वल जुलूद, और चमड़े भी जलकर खाक हो जाएंगे। वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, और लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों से उनकी पिटाई होगी। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा, जब एक दुख से निकलने की जहन्नमी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला दूसरे दुख में जहन्नमियों को गिरफ्तार कर देगा। अल्लाह की नाफरमानी कब तक हम करेंगे? अल्लाह का बागी कब तक बने रहेंगे? जिस मालिक ने हमें पैदा किया, हमारे पैरों में चलने की ताकत दी, हाथों में पकड़ने की, जबान में बोलने की, तो कानों में सुनने की, कानों में सुनने की तो नाकों में सूंघने की, दिलो दिमाग में सोचने समझने की सलाहियतें पैदा की। अल्लाह की कसम ये वो एहसानात हैं, किसी एक एहसान का बदला भी पूरी जिंदगी सजदे में रह कर भी नहीं चुका सकते। इसीलिए अरब का एक शख्स जब हॉस्पिटल से उठता है और अपना बिल वाला पर्चा देखता है तो वो ऐसे करके सर पकड़ लेता है और अल्लाह के लिए शुक्रिया के कलमात बुलंद करता है। आए मेरे परवरदिगार, लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हुआ जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। आए मेरे परवरदिगार, बचपन से लेकर अब तक तेरा दिया हुआ ऑक्सीजन इस्तेमाल किया, तूने हमसे कोई बिल नहीं मांगा, कोई पैसे का मुतालबा नहीं किया। हॉस्पिटल में चंद मिनट क्या हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए, इतनी बड़ी लिस्ट बिल की दिखा दी गई। अल्लाह तेरी रहमत का क्या कहना, तेरे करम का क्या कहना, तेरे एहसानात हम रात दिन खा पी रहे हैं लेकिन फिर भी तेरी नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे जहन्नम से बच जाए, लेकिन हम और आप जहन्नम में लगातार जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हदीस में, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर जहन्नम से बचाने की कोशिश करता हूं, जहन्नम से उठाता हूं और तुम बार बार जहन्नम के ऊपर तुम गिरे जा रहे। अल्लाह ने कहा खुद भी बचो और अपने अहल वयाल को भी उस जहन्नम की आग से बचाओ। वो तरल मुजरिमीन, अल्लाह फरमाता है आए साथ जब तुम उस दिन मुजरिमों को देखोगे, जहन्नमियों को देखोगे, यौमइज़िन मुक़र्रनीन
फिल अस्फाद, वो मुजरिमीन, वो जहन्नमी उस दिन जहन्नम में जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। फिल अस्फाद, जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कतरान, और उनके ऊपर तारकोल के कपड़े होंगे। एक कपड़ा, आदमी अलग अलग कपड़ा पहनता है, अलग अलग कपड़ा पहनता है। गर्मी में गर्म सूती का, सर्दी में आदमी ऊनी कपड़ा पहनता है। दुनिया का भी यही मिजाज है, दुनिया वालों का भी मिजाज है। अल्लाह फरमाता सिर्फ आग ही के कपड़े नहीं, आग जलाने के लिए उससे पहले तारकोल के भी कपड़े पहनाए जाएंगे। सराबीलुहुम मिन कतरान, कतरान अरबी में किसको कहते हैं देख लीजिएगा, जिससे सड़कें बनाई जाती। यूपी में जिसको डामर बोला जाता है, हम लोग पीच बोलते हैं, काले रंग का। उलमा इसके बारे में लिखते हैं, इसके अंदर कई सलाहियतें होती हैं। आग तेजी से इसमें लग जाती है, बहुत गंध होती है, इसमें बू होती है, बहुत ही खतरनाक इसके अंदर बू होती है। तो जहन्नमियों को उस दिन ये तारकोल के कपड़े दिए जाएंगे। सराबीलुहुम मिन कतरान व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। जहन्नम की आग उनके चेहरों को जला देगी। यौम तक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार, अल्लाह फरमाता है उस दिन जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम में उल्टाए पलटाए जाएंगे। ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जिनको बनाने के लिए, जिनको सजाने और संवारने के लिए बंदा कौन कौन से क्रीम इस्तेमाल नहीं करता। हमारी कौम की बेटियों से पूछें, बहनों से पूछें, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए वो कहीं एक रोंगटा तक भी रहने नहीं देती। जबकि ऐसे करने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल ने लानत किया है। फिर भी अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी कौम की बेटियां ये करती हैं, हमारे नौजवान करते हैं। नौजवान तो छोड़िए, एक टांग जिनकी कब्र में जा चुकी, एक टांग जिनकी कब्र में जा चुकी, वो भी गाल पकड़ पकड़ कर खिंचवा करके दाढ़ी साफ कराते, इसलिए ताकि वो अच्छे दिखे, मालूम हो कि वो भी जवान है। सिर्फ अपना अच्छा चेहरा अच्छा करने के लिए फेस वॉश इस्तेमाल करता है, तरह तरह की क्रीम और पाउडर इस्तेमाल करता है। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए यहाँ तो क्रीम पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे अगर अच्छे अमाल से इन चेहरों को ना सजाया गया, अगर सजदों से इन जबीरों को ना सजाया गया, तो अल्लाह की कसम ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जिन चेहरों के ऊपर तुमने करोड़ों की मेकअप की, करोड़ों के क्रीम और पाउडर में सर्फ कर दिए, कल क़यामत के दिन वो तग़शा वुजूहहुमुन नार, अल्लाह कहता है जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। यौम तक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार, जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम में उल्टाए पलटाए जाएंगे, जहन्नम में भून दिए जाएंगे। कोई चीज हम भूनते हैं, फ्राई करते हैं, बार बार हम ऐसे ऐसे चमचे से करते हैं ताकि चारों तरफ अच्छी तरीके से पक जाए। ऐसे ही अल्लाह ने देखिए अल्फाज क्या इस्तेमाल किया, तो कल्लब जिसके माने होते हैं उल्टाना पलटाना, कल्ब माने पलटाना, बार बार उल्टाए पलटाए जाएंगे, यानी उनका चेहरा हर तरह से पका दिया जाएगा जहन्नम। और एक आयत करीमा देखते हैं, वक्त गुजर रहा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नत, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नत या नाफिदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। वो मंजर बड़ा भयानक है, कोई किसी का उस दिन पुरसान हाल नहीं। माँ बेटी से, बेटा इसी तरह बाप से, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। दुनिया में तो चलो भाई ठीक है, कभी कभार कोई अपनी इंसानियत दिखाते हुए किसी की मदद कर देता, भाई है, अपना सगा भाई है, चलो कुछ मदद कर दे, लेकिन वहां अपनी सबसे ज्यादा जिस पर जान छिड़कता है उस पर भी मदद करने को तैयार नहीं। एक माँ को सबसे ज्यादा अपने शीरखार बच्चे से मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह उस दिन की कैफियत और हालत बयान करते हुए फरमाता है उस दिन एक दूध पिलाने वाली भी अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, उससे गाफिल हो जाएगी।
सबसे ज्यादा दुनिया में किसी से किसी को मोहब्बत है एक माँ को अपने बच्चे से होती है। बाकी जितनी मोहब्बत है ये सब झूठे से दावे हो सकते हैं, खोखले। या फिर एक मोमिन की मोहब्बत अल्लाह से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसकी मोहब्बत की तारीफ अल्लाह ने की। ईमान वाले तो अल्लाह ने पहले मुशरिकीन का जिक्र किया, ये गैरों से, ये गैरुल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, लेकिन ईमान वालों की बात तो ये है, आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं। तो अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो एक माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ को बेटे के बगैर करार नहीं और बेटे को माँ के बगैर चैन नहीं। इसी तरह एक मोमिन अल्लाह की रूगर्दानी करे, अल्लाह की मुखालिफत करे, अल्लाह के बताए उसलूब और तरीके से हट जाए, ये कभी भी गवारा नहीं करेगा। ईमान बेच दे, अल्लाह की कसम, कट तो सकते, मर तो सकते, एक मोमिन ये सब नहीं कर सकता। सहाबा की जिंदगी इसके लिए बेहतरीन नमूना मौजूद। सहाबा ने ये सारी सऊबतें, ये सारी मुश्किलें क्यों उठाई? क्यों शेब अबी तालिब ने सूखे पत्ते चबा कर 3 साल जिंदगी गुजारी? किसी ने मजबूर किया? किस चीज ने? अल्लाह की मोहब्बत ने, अल्लाह की तौहीद। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जाकर पत्थरें खा रहे हैं? किस चीज की जरूरत है? क्या चीज? अल्लाह की मोहब्बत थी। क्यों बद्र हुई, क्यों हद हुई? अल्लाह की मोहब्बत। बारे सूरज, जहन्नमी जन्नती को आवाज लगाएंगे, ऐ जन्नती भाइयों, अल्लाह ने जो कुछ पिलाया है हमें उनमें से कुछ पिला दे। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या अल्लाह ने जो रोजी दी है उन रोजियों में से कुछ हमें इनायत कर दो। जन्नती क्या जवाब देंगे? क़ालू, जन्नती कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने तो काफिरों के लिए जन्नत के आराम व आशाइश की सारी चीजों को हराम कर दिया है। अल्लाह ने तुम जैसे नाफरमानों के लिए ये जन्नत की नेमतें हराम कर दिए। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए तुम्हें कोई चीज इनायत नहीं कर सकते। हम पहचान भी रहे होंगे कि ये बड़े भैया है, ये खालू जान है, ये चचा है, इसके बावजूद भी देने से इनकार कर देंगे और कहेंगे दुनिया में जब हमने रब की मर्जी के खिलाफ कोई अमल नहीं किया, अब जन्नत में आने के बाद भला हम क्यों रब की मर्जी के खिलाफ करेंगे? मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है, अल्लाह की कसम, अगर जहन्नम का तारुफ कराया जाए, जहन्नम का सही मानों में इंट्रोडक्शन कराया जाए तो 3-4 खुतबे लगेंगे, तब भी जहन्नम का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह ने जहन्नम को हर तरह से जिक्र किया, जहन्नम की एक एक वादी को खोल खोल कर जिक्र किया, एक एक अजाब को जिक्र किया, ताकि बंदे जहन्नम का जिक्र पढ़ें और उनके दिल दहल जाएं, उनके दिलों में अल्लाह की खशियत आ जाए, उनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। और जब अल्लाह का डर दिलों में पैदा होता है, अल्लाह की कसम, यही अल्लाह का डर ही इंसानों को नेकियों की तरफ राग़िब करती है, यही अल्लाह का डर इंसानों को गुनाहों से रोकती है। आदमी रोजे की हालत में कौन देख रहा है? आदमी अकेले वजू कर रहा है, आदमी चाहता तो पानी पी सकता था, कोई नमाजी नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई मुअज्जिन भी नहीं है, अरे कौन देख रहा है मस्जिद में अकेले? वो चाहता तो एक आध घूंट अंदर भी ले जा सकता है, कोई चीज रोक रही है तो वो अल्लाह का डर रोक रहा है। तो अल्लाह का डर पैदा कब होगा? जब हम कुरान करीम में जहन्नम का जिक्र पढ़ेंगे। अल्लाह आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के खाने का जिक्र फरमाया, जो हर जुमे आयत पढ़ी जाती है, सूरह गाशिया पढ़ी, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या ढांप लेने वाली, छिपा देने वाली क़यामत की खबर आप तक नहीं पहुंची है? वुजूह यौमइदिन खाशिया, जिस दिन चेहरे डरे हुए होंगे, कुछ चेहरे सहमे हुए होंगे। यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके हुए होंगे, चेहरे से थकावट के असरात नुमाया होंगे, चेहरे से मालूम होगा बहुत अमल करके आया है। आज देखिए नमाजों का भी पाबंद है और दूसरे अच्छे अमल कर रहा है, लेकिन उनके पास तौहीद मौजूद नहीं। ऐसे बहुत लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा, वुजूह यौमइदिन खाशिया के बाद बहुत सारे चेहरे उस दिन डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। क्यों? उन्होंने अमाल तो किए,
लेकिन वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, थकावट उनके चेहरों पर जाहिर होंगी। पता ये चला हर अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल है जो अल्लाह के तरीके पर हो, रसूलुल्लाह के तरीके पर हो। हम किसी भी चीज को दीन समझकर बगैर किसी तहकीक के करना ना शुरू कर दें। देखें परखें, अल्लाह ने हर एक के पास दिमाग दिया, दिल दिया है, इसलिए और जहन्नम में एतराफ भी बंदा यही करेगा, इन्ना कुल नस्मऊ औ नाकिलू, ए काश के हम सुन लेते, औ नाकिलू और अक्ल से काम कर लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, तो हम जहन्नमियों में से ना होते। आज हम जहन्नम में नहीं होते। काश के दुनिया में जो लोग तौहीद की दावत दे रहे थे, काश हम सुन लेते। जो लोग जहन्नम से डरा रहे थे, काश हमने उनकी बातों पर कान धर लिया होता, औ नाकिलू और अक्ल से काम कर लिए होते, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, तो हम आज जहन्नमियों में से ना होते। जन्नती भी जन्नत में जाने के बाद अल्लाह की नेमतों का इकरार करेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, अल्लाह दुनिया में भी हम जहन्नम का जिक्र करते रहे, हमने जहन्नम को फरामोश नहीं किया, हम अपने अहलो यार में जहन्नम का जिक्र करते रहे। अपनी मसनदों पर बैठकर तकिया लगाए हुए अपने अज़ाक़ारिब से बात करेंगे, अल्लाह से भी कहेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, अल्लाह हम अपने अहलो यार में जिक्र करते रहे, जिक्र करते हुए फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम कर दिया।